Hello everyone, welcome to Reverse UPSC. So let's discuss some previous year question in the Indian modern history. So the question is asked in 2023 is related to date events, historical important date event. The statement one says, just a second, 7 August is declared as National Handloom Day. It was in 1905 the Swadeshi movement was launched on the same day. So you will say that you can't remember the date because you might have studied the Swadeshi movement, but you're not aware that 7 August 1905 whether the Swadeshi movement was launched on this day or not. However, the question has been linked with the current affair because when you are aware the current affair that you are reading current affair, then you know that National Handloom Day was declared on the Swadeshi movement line itself. However, the question nature is similar because in the last year, in 2021, the question UPSC asked that 8 August 1940 is related to what in the Indian history? Which one of the following statements correct? So the question, the UPSC is emphasis on the historical event, important historical event. So the Quit India solution was adopted by the AICC. So the question is on the important events. So date. Why I am focusing on date events? Because the nature of the question of UPSC is not changing because they have asked earlier that 16 August, 16 October 1905 is well known for what? So the partition of Bengal took place. So we know that 16 August October 1905 is related to partition of Bengal. But if you are not aware, to when the Swadeshi launch, if you read this statement, the formal proclamation of Swadeshi movement was made in Calcutta. See, Swadeshi movement was proclaimed on 7 August 1905. So for what I am saying, you will say, sir, there are 1,000 dates. Can we remember all? No, because the thing is that there are some important events from Indian freedom struggle basically from 1905, 1900s. So from 1900s to 1947, there are some more important historical event. So you should focus on that days. Just hear some glimpse of these. Dandi March. So you know that Dandi March was launched by Gandhiji on 12 March at Sabarmati Ashram, and it ended up in Dandi in April 6, 1930. And Gandhi Irwin Pact is also an important event. Even the Gandhi and the Irwin has signed the pact on 5 March 1931. Even the communal award is an important event, and it was given by the Ramsay MacDonald on 16 August 1932. So this is some event in my point of view. However, I can't guarantee you that the question may ask from these 4 events only. When you are reading the books, you may have aware that you basically focus on some important event date. So from 1900 to 1947 or 1960s, you said just when you are reading the spectrum in your mind, you have dimension that you basically focus on important event. When the Pune Pact signed between the B.R. Ambedkar and Gandhi, it was signed on September 24, 1932. So what I am focusing? That UPSC has nature in modern history. It asks date events, important date events. Date, you should aware of the date. It
Ask leader associated with the event. Leader associated with event. It asks chronology of the event. It asks books related by someone on that issue, on that event. It focus on that why, because if when Cripps mission asks, so you should know कि why Cripps mission, when Cripps mission came, why it came, reason. When Simon Commission came, why it came, reason. Because Cripps came for the support of Indian in the World War. So you should aware of this. When in 1939 Congress minister resigned, then why? You should aware why. So there are 4 dimensions that I have mentioned. So if you are focusing these 5 dimensions in the modern history while reading the spectrum, you will able to solve the maximum question when asked in UPSC examination. So the thing is that एक ही बुक से आप सब एग्जाम क्रैक करोगे, वेदर इट इज स्टेट पीसीएस, वेदर इट इज एसएससी सीजीएल, वेदर इट इज एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम. स्पेक्ट्रम आप उठा के पढ़ोगे. व्हेन यू आर रीडिंग पॉलिटी से भी आप सीजीएल निकाल लोगे, आप पॉलिटी से आप स्टेट पीसीएस के भी एग्जाम निकाल लोगे. बट थिंग इज दैट व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन द डायमेंशंस, बिकॉज आपको तरीका पता चलेगा कि हमें कैसे वो बुक्स को कवर करना है. बिकॉज अगर मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि अगर आपके सामने अगर अजगर है, तो अगर अजगर सांप है आपके सामने है और आपको उससे बचना है, उससे भागना है, तो आप अगर आपके पास लाठी है तो आप उसकी आंखों में भी निशाना मार दिए, उसकी आंखों पे फोड़ दिए, तो आप वहां से बचकर भाग सकते हो. आपने एक ही लाठी मारी, उसकी आंख पे लग गई और आप भाग गए. या मे बी अगर आपको नहीं पता और आप वहां पे 50 लाठी मार रहे हो, तो शायद वो मर जाएगा. उसको आप 50 बार मारोगे लाठी से, वो भी मर जाएगा और आप बच जाओगे. बट आपको मेहनत बहुत लगेगा. तो थिंग इज दैट कि अगर आपको पता है राइट डायरेक्शन की वेयर योर फोकस शुड बी मोर एंड वेयर योर फोकस शुड बी लेस, सो आपको पता चलेगा कि आपका काम कम टाइम में भी हो सकता है. सो द अल्टीमेट गोल इज थिंकिंग इज दैट कि suppose you are preparing for UPPCS or any Bihar PCS or any Rajasthan Administrative Service Examination, any state service examination or maybe other examination, आप पॉलिटी स्पेक्ट्रम से आपके क्वेश्चन बनेंगे और कोई भी एग्जाम से बनेंगे. बट द थिंग इज दैट कि आपको वो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. कि अगर आप ये डायमेंशन कवर कर रहे हो, जो डायमेंशन मैं बता रहा हूँ, मे बी आप यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन देखिए तो आपको आइडिया होगा कि नहीं, अगर आपने ये सारे डायमेंशन कवर कर रहे हैं तो आपके पीवाईक्यू तो जरूर हो जाएंगे. जस्ट अ सेकंड. आपके पीवाई अगर आप ये सारे डायमेंशन कवर करते हैं तो मे बी आपके पीवाईक्यू जरूर होंगे. और नेक्स्ट ईयर भी आपके 23 में, अगर मे बी नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन 24 के, तो अगर आप इस इवेंट्स पे फोकस करते हैं, इस डायमेंशन पे फोकस करते हैं, तो आपके क्वेश्चन मे बी डूएबल है. बट अगर आप स्टेट सर्विसेज को देंगे तो उसके डायमेंशंस क्वेश्चन के पूछने के तरीके अलग है. वो पूछते हैं कि कौन सा इवेंट हुआ था, तो क्यों हुआ था, रीजन क्या है. या अगर वो डेट्स पूछे, स्मॉल लीडर का नाम पूछते, किताब किसने लिखी है. तो इट इज लाइक दैट दे आर फोकसिंग ऑन स्मॉल थिंग्स और स्मॉल रिलेटेड इवेंट्स और दे आर स्पेसिफिक स्टेट स्पेसिफिक लीडर्स नेम. So UPSC focus on these events, so these dimensions. If you're focusing if you're reading book by these dimensions, then you are able to have grips over the concept and even topic too. So I will say, while reading books, your dimension should be clear. Your mind should be clear that in which dimension you should read this book. Because अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चंस देख रहे हैं, we are seeing the पॉलिटी क्वेश्चंस, तो आप देखेंगे कि पॉलिटी में जो होते हैं वो डीपीएसपी पूछ रहे हैं. डीपीएसपी पे क्वेश्चन आ रहा है, वो प्रियम्बल पे क्वेश्चन आ रहा है, वो पूछ रहे हैं कि प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं है, लिबर्टी का क्या मतलब होता है, फ्रेटर्निटी उसमें कॉन्सेप्ट है, उसमें और सेक्युलरिज्म है.
तो दे आर आस्किंग कि वो की टर्म्स का मतलब क्या होता है। लिबर्टी पे 3-4 बार क्वेश्चन पूछा कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट नहीं है, क्या है, बस उसकी प्रेम्बल पार्ट है कि नहीं, डीपीएसपी क्या है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पे पूछा है। तो दे आर फोकसिंग की समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटी की, उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है। तो अगर आप यूपीएससी के पेपर देखेंगे तो आप यूपीएससी के एग्जाम निकालेंगे, बट अगर आप बीपीएससी के भी, आप स्टेट सर्विसेज के या यूपीपीएससी के एग्जाम, यूपीपीएससी के देंगे तो आप वो निकालेंगे। तो आपको पीवाईक्यू देखने हैं, और अल्टीमेट ये है कि आप जो एग्जाम के देख रहे हैं उसके ही पीवाईक्यू देखेंगे, क्योंकि आपके अगर आप 2 एग्जाम 3 एग्जाम टारगेट कर रहे हैं और आपको आप सोच रहे हैं कि मैंने पॉलिटी पढ़ी, बट आपका डायमेंशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसी बुक से सारे एग्जाम निकलेंगे और आपको उस नज़रिए से पढ़ना है। जैसे हमारे टैगलाइन भी है कि रोज पढ़ो कम पढ़ो यूपीएससी के नज़रिए से पढ़ो। सो व्हेन यू आर रीडिंग विद द यूपीएससी का नज़रिया, यू विल डेफिनेटली हैव आइडिया ऑफ how examiner की psyche क्या, how examiner is framing the question for a UPSC aspirant, for a UPSC examination, because UPPSS में अगर वही क्वेश्चन जनरेट होगा तो मे बी अलग अलग डायमेंशन पे फोकस किया जाएगा। सो माई गोल इज टू हैव कि हमें डायमेंशन समझना है, हमें क्वेश्चंस के नेचर को समझना है, और हमारा एनालिटिकल स्किल डेवलप करनी है। द अल्टीमेट थिंग इज कि एनालिटिकल स्किल, अगर आप एनालिटिकल स्किल नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एनालिटिकल स्किल क्या है, ये कोई थिंग नहीं है। एनालिटिकल फील ये होता है कि अगर मैं कह रहा हूँ डेट इवेंट से पढ़ना है, लीडर एसोसिएट विद द इवेंट, उसमें कौन से लीडर इन्वॉल्व थे, कौन से नहीं थे, कौन कब मरा है लीडर, क्योंकि आपको वो कॉन्टेक्स्ट भी समझना है कि लाला लाजपत राय अगर वो 1920 साइमन कमीशन के आसपास मरे हैं, तो आपको पता है अगर 1945 के कोई इवेंट बेबल प्लान या किसी और इवेंट को जिक्र किया गया तो आप यू कैन इजीली एलिमिनेट कि लाला लाजपत राय इवेंट का हिस्सा नहीं हो सकते। सो थोड़ा क्रोनोलॉजी आपको मेंटेन रखना है माइंड में कि ये पढ़ते हुए, और बाकी और भी। दिस इज द फर्स्ट वीडियो और बहुत ट्राई किया है, मे बी यू फाइंड फ्रूटफुल इन योर प्रिपरेशन एंड द जर्नी। आई जस्ट वांट टू डेवलप योर एनालिटिकल स्किल एंड माइंडसेट एंड पॉजिटिव माइंडसेट। The thing is that prelims is about mindset and mains is about your content, and that 3 are always matter, because मैं कितना भी बता लूँ, कितना भी ज्ञान दे लूँ, वो 3 hours 2 hours आपके हाथ में है अल्टीमेट। एंड माय व्यू इज दैट कि यूपीएससी के नज़रिए को समझना, एग्जामिनर के साइकिल को पढ़ना है, क्योंकि आप अगर एग्जामिनर के साइकिल और उसके नज़रिए को देख के समझ सकते हो तो आप शायद वही स्पेक्ट्रम की किताब आप 5 बार पढ़ ले और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन राइट होने लगेंगे। बट अगर कोई और भी पुराना एस्पिरेंट है, 2 या 3 ईयर है, आप अभी 5 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो, तो मे बी आप उसके आगे रहोगे। रीजन इज दैट कि आप एग्जामिनर के माइंड के साथ समझ पा रहे हो, उसको खेल पा रहे हो कि हाँ अगर वो ऐसा पूछा है, अगर उसने डेट इवेंट पे एक बार पूछे हुए, फॉर एग्जाम्पल ये देखो डेट इवेंट उसने पूछे हुए कि हाँ 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, तो अगर उसने डेट इवेंट एक बार पूछे हैं तो आपको पता है कि देखो 16 अगस्त 1905 पे भी डेट इवेंट है, इस बार भी डेट इवेंट एक पूछ लिया वापस से। सो यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन डेट इवेंट। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शायद अगर डेट इवेंट ये आ गया, मे बी दांडी मार्च पे डेट इवेंट आ गया, तो आप दांडी या गांधी इवेंट का डेट इवेंट आ गया, कम्युनल अवार्ड का गया, पूना पैकअप हुआ था। सो आई एम नॉट सेइंग कि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, बट इट इज आई एम सेइंग कि अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ो तो थोड़ी डेट इवेंट एक डायमेंशन रखो कि हाँ कौन सा कब हुआ था, चाहे इम्पोर्टेंट। अब ये मत याद रखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, ये सिविल डिसोबीडियंस आपको पता है कि वो, तो क्योंकि ये सब बहुत सारे इवेंट है कि जो अचानक से स्टार्ट हुए, बट आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा आपका डायमेंशन या एनालिटिकल स्किल की कैसे क्वेश्चन एक पुराने पूछे गए, मे बी नेक्स्ट ईयर कैसे पूछे जा सकते हैं, अगर आप ये नेचर रखते हो तो मे बी यू विल इजिली डूएबल द solution. Thank you very much for listening me, and this is the first video you might connect with, and this is the first video I tried my all best to put you my efforts to develop you analytical skill and mindset. Thank you so much.